क्या हाल? अरे नहीं, पहले क्लैप दे देते हैं। हाँ। ठीक है, देख रहा हूँ ना मैं। Takadimi takajono takatakacha takadimi takajono takatakacha takadimi takajono takatakacha takadimi takajono takatakacha वेलकम 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 टू You चार welcome. विचार। हाँ, आपके घर में आई एम वेलकमिंग यू। वेलकम टू योर ओन हाउस। You all are welcome. अरे नहीं, बट यार ये मैं भी ये सब मैंने मना किया था, हाँ पर ये लोग कहते हैं करना पड़ता है। अच्छा, ठीक थोड़ा है, वो बहुत- प्रोफेशनलिज्म की। वेलकम टू चार विचार, सेमीकोलन फिल्म्स पॉडकास्ट प्रेजेंट्स चार विचार, हाँ जी। एंड दिस इज गीत सागर। ही नमस्ते। इज कैसे व्हाट हैं आर आप यू? लोग? व्हाट आर यू? यार आई एम सर्चिंग व्हाट आई एम। फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 3-4 साल में कंफ्यूज रहा हूँ। हाँ। माय आइडेंटिटी ऑलवेज वाज ऑफ अ सिंगर, हम्म पर लॉकडाउन के बाद समहाउ द लिरिक्स राइटिंग एंड एवरीथिंग पिक्ड अप। हम्म। पहले लिखता था, अपने लिए लिखता था, हम्म एंड आल्सो आई started exploring acting a little more sincerely. नाइस। So I am also figuring what I am. But then, so far, I think I would like to believe कि लिखना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है और एक्ट करना अच्छा लगता है। नाइस। ये 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कहीं इन्हीं के बीच कुछ हूँ। Yeah. I also happen to write films, poetry. So what do you think? Where does it come from? Because while coming over here, we were having a conversation, me and Yashwant, that वो जो एक बात कहते थे ना कि poetry comes to you. Yeah, you're a I medium. know it's a craft that you can learn, but it comes to you. तो मुझे शुरुआत में लगता कि थोड़ी सूडो सी बात है ये, that you are just a medium. But somehow few things happened and I realized it just happens. Do you think that's true? For I mean, me- if there is a deadline and you have to write, then you can't wait for the. So with commissioned work, what happens? I'll tell you. My personal experiences. Most of time उसमें भी अटकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं अटकते। हाँ. But there are a lot of elements which are helping you. As in, there is a brief. There is a person who tells you, like a director, who tells you कि this is what I want. Kind of. कुछ चाहिए आपको? अच्छा, ओह। ये मेरे हमारे पौधों से प्रॉब्लम है आपको? ऐसा लग रहा था इनके सर के ऊपर से आया हुआ है क्या? अच्छा ऐसा. So there is a director or most of the time there is a composer who tells you कि this is what they see it as, this is what they want, or this is how they see it, and you have a pathway. But with poetry, especially when you write for yourself, sometimes it's very light because you're feeling light, but then sometimes there's a crowd inside you. You don't know what you want, how to say it. पहले तो. हाँ. And there are a lot of things which the world doesn't want to listen to. Right? We have discussed about one such title, yes. you know, Yes. उन्मत्त, जो मेरे Yes. Instagram पे है. उन्मत्त. Yes. उसमें उस रात उन्मत्त लिखने के बाद रात को मेरे इनबॉक्स में मैं अपने दोस्तों को समझा रहा था कि ये सारे गॉड्स के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है. Correct. I really feel this. तो फिर ऐसी भी चीजें जो आप कहना तो चाहते हो पर आपको पता नहीं लोग सुनना चाहते हैं या नहीं. Was it like I don't want to get too much into it, but the whole idea was that gods don't exist anymore. See, Vaguely? it's a personal belief. 100% Completely subjective personal opinion. belief. Subjective opinion. Yeah. But is it in the religious context? Because what I believe हाँ. is that वो हमने उनको एक रूप दिया है ना. हाँ. इंसान के रूप में. हाँ. इंसान के रूप में. करेक्ट. अगर हम सब हाथी होते तो हमारे भगवान उस रूप में होते. हम सब पानी होते तो पानी के रूप में. और हम नेचर, हमारा रिलीजन जो है हिंदुइज्म अगर कहें हम, वो नेचर से आता है, तो हमारे गॉड्स भी नेचर जैसे हैं. करेक्ट. करेक्ट है ना. सो वो एक सिंबल है, एक मेटाफर है. राइट. टू प्रे टू. राइट. टू हैव फेथ इन इट. राइट. बट डू यू believe that there is something above, like not in a religious context at all? Yeah. Just something above, beyond. यार मैं इसको बहुत ही pragmatically जिस तरह से देख पाया हूँ या समझ पाया हूँ अपने लिए, वो ये है कि एक चींटी यहाँ पे चल रही है और किसी ने आटा डाल दिया, या किसी हवा चली और वो बह गई, उड़ गई, या पानी आया और वो बह गई, किसी का पैर पड़ गया और वो मर गई. उसके लिए हम वो एंटिटी है. राइट. क्योंकि वो उसके समझ के बियॉन्ड है. तो जो आपके समझ के बियॉन्ड है उसको कहते हैं अरे भगवान है. मैं आज जा रही थी और मुझे कहीं से खाना मिल गया, अरे किस्मत.
wow. So technically beyond our understanding. Yeah, I think But, so far. So But then that's why I really believe in science, because science makes you understand everything. But then the problem is, साइंस समझने वाले को आप इजीली बेवकूफ नहीं बना सकते ना. fair. तो ऐसे में जो एम्बिगिटी है, हाँ, उसी से बेवकूफी बरकरार रखी जा सकती है. करेक्ट. और मुझे एम्बिगिटी से प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि एक मिनट, जितने भी लोग कह रहे हैं कि वो बियॉन्ड देख सकते हैं या जानते हैं, क्या उन्होंने देखा है? पहला सवाल. और ये कैसा क्लासिज्म है कि आपने तो देखा है पर मैंने नहीं देखा है, और आपके थ्रू ही मुझे देखना पड़ेगा. अगर सच में है तो इट शुड बी फॉर एवरीवन. आप बता दो ना. साइंस तो क्या कहता है? ये मिलाने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है, ये देखो, सब मिलाओ. जितने भी लोग इस दुनिया में अगर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाएंगे तो पानी बनेगा. बराबर. Correct. But that's again, we're talking about a tangible thing, right? I'm saying But a lot of people say na it is tangible. A lot of people say na हमारे पास आ जाओ, या हमारे पास जवाब है. but that's very problematic. 100%. That why are you the chosen one? Yeah, exactly. So at core it should be that everyone can access it, but you have to work for it. That's my basic understanding of absolutely, it. Fair. But coming back to poetry, right? When you're writing for yourself, the emotion can be abstract, and I really like what you said. Ki sometimes you feel like there's a crowd inside of you. Oh yeah. And there's so many emotions you want to talk about. मुझे मेरे साथ ही होता है कि बोर्डम से आता है सब. और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये किसी ने कहा और मैंने पढ़ा और मुझे लगा हाँ यस ये होता है मेरे साथ. नाइस. तो उसमें ये होता है कि कमीशन वर्क है या पैसा है या सब कुछ है ना, तो जब तक ये सब चल रहा है ना, मेरे जैसे आदमी को आदत पड़ गई कि अरे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. आज सुबह आई वाज डिस्कसिंग एंड आई वाज थिंकिंग, पर क्या पैसा कमा लेना, थोड़ा बैंक बैलेंस होना, गाड़ी होना, काम होना और लोगों का काम अपने आप आना, क्या आर्टिस्ट की सक्सेस ये है? और ये कितना उस चीज से अलाइंड है जो आप करना चाहते हैं? फिर पहला क्वेश्चन आता है, अच्छा आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन वो तो तब सामने आएगा जब ये भीड़ छट जाएगी. पैसे की भीड़, कमीशन वर्क की भीड़, ये अगर क्या आप इसको किनारे करके 5 दिन बिना किसी चीज को हाथ लगाए ये सोच पा रहे हो कि आप करना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट? व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? वो स्ट्रगल होता है यार. And it's a privilege you have to attain. Yeah, I think because right now, of course, we all are scared of boredom. Right. We constant, and it's so easy to kill boredom, na? Right now, it's and in your phones. pockets. Oh exactly. So it's gone. I also very strongly feel like, I think this happened with Yoshida only. She was doing a documentary workshop, and there was an exercise she used to do. She used to send me a word, and I just used to share my first thoughts. So boredom was one of that. Right. One of those words. Right. So I think it's extremely important. Boredom, na? To be bored. Yeah. Then only you go within, and you forced to, na? Then stimulations नहीं है ना यार. I am guilty as well. और मेरे साथ I'm sure बहुत सारे लोग. You said कि जैसे ही first thing we do. Correct. I do. Correct. तो I am guilty and और 2-4 दिन निकलने के बाद आपको realize होता है, oh I have so much time, I'm killing it like this. Yeah. Why I'm not allowing myself to not do this? Maybe there is something more. Correct. तो जैसे कि religion के मामले में मैं कहूँ तो मुझे लगता है meditation helps. Because it forces you to sit with yourself and your breath. And there are thoughts incoming and out. Like constantly आते जाते रह रहे हैं. उन thoughts में जवाब भी तो है. उन thoughts में सवाल भी है ना. उन thoughts में discomfort आप रूबरू होते हैं ना अपने discomfort. But I think at core it's about then going to that absolute space of no thoughts at all. हाँ यार मेरे साथ वो कभी हुआ नहीं है. मतलब fraction of second के लिए कभी हो गया हो तो मुझे नहीं पता. हाँ, because वो domino effect में चलता है ना thought. ये आया राइट. आता ही और वो बहुत कहीं से भी कहीं जा सकते हैं. राइट. तो अतुल सर कहते हैं, अतुल मुंगिया सर की वर्कशॉप में वो कहते हैं, और पढ़ा भी मैंने किताबों में जो मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो ये है कि ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ. दिमाग का काम है सोचना, वो सोचेगा. बट देन जैसे ही समझ में आएगा, ओह आई हैव बीन थिंकिंग, ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ. एंड मुझे कभी-कभी वो भी डिफिकल्ट लगता है. पर या करेक्ट. इज दिस पासिंग प्लेन्स गोइंग टू बी एन इशू? रुकवा दे. दैट्स फाइन. दैट्स रुकवा दे. थोड़ा ऐसे घूम जाता है ना. Sitting the right way, he's turning his. कर सकते हैं. ठीक है. तो या हाँ, I was just going to say that writing
the commission work, like lyrics. ठीक है, I've seen you. That was my introduction to Right. you. We work from the same cafe. Yeah. And I मैं घर saw से you. काम नहीं कर पाता. हाँ, same. So you're sitting in the corner, singing to your phone, हाँ. writing something, singing to your phone. Yeah. And then we were discussing something. I said, I'm sorry, I've disturbed you. No. But you continued singing. Yeah. You were, it's fine. And you continued singing. So now you said brief and everything, all of that helps. Right. There is still craft. Right. And you come from a musical background. You were the winner of X Factor, Yeah. which was one only season they made, right? Yeah. मेरे First लिए ही season. आए थे वो. But तो ये बंदे. Yeah. and that time you India used to चले. write or नहीं. I used to write poetry. मीटर की समझ नहीं थी, कैसे लिखना है की समझ नहीं थी, और लिखता था. और ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये वोकेशन बन जाएगा या I'll become a voice, आवाज जो मेरा पेन देगा. I never thought that it will eventually I'll be writing professionally. How was it right after winning X Factor, or the process of it? How real was it, the reality show? I mean, balance it Right out. question. Balance it out. Absolutely right. अब 10-12 साल हो चुके हैं, तो एक बात तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे सिंगर्स थे, 100%. और मेरे शहर ने जम के मुझे वोट किया. वोटिंग बेस्ड शो था. मैं कैसा भी from ग्वालियर. हाँ. तो आई एम रियली थैंकफुल. मैं कैसा भी गा रहा था. उस दौरान मैं कुछ मेडिकल चीजों से गुजर रहा था जो एक्स फैक्टर की टीम को पता थे. सब कुछ पता था, बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट इट. Oh, they didn't make a thing out of it. I mean, that's They wanted something else to become that thing. मुझे ऐसा हाँ. लगता है. या I never understood why. Was I at my best? No. I personally believe there were other people who deserved it more than me. With due respect to my whole city, because of course they believed in. Yeah. एक ही क्वेश्चन जो मुझे बार बार आता था कि जब तक मैं टॉप 12 में पहुंचा था तब तक तो कोई वोटिंग नहीं थी. Okay. राइट. मैं लाखों लोगों में ऑडिशन करके टॉप 12 तक खुद पहुंचा था अपनी मेहनत से. उसके बाद देयर वर सम मेडिकल थिंग्स गोइंग ऑन. मेरा परफॉर्मेंस खराब जा रहा था बार बार. किसी ने कभी आके मुझसे ये नहीं पूछा और बैठे नहीं या खुद ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया कि यार हम चुन के लाए थे इसको. ही वाज गुड. देन व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? समथिंग मस्ट बी रॉन्ग ना, कि सडनली ही इज नॉट एट हिज ऑप्टिमम. Correct. एंड उसको लेके रिडिक्यूल हुआ स्टेज पे. वो भी हुआ. हाँ, आई वाज टोल्ड कि कैसा गा रहे हो, ऑर्केस्ट्रा जैसा गा रहे हो तुम. हाँ, तो ओके, आप लोग पंडित हैं, आप लोग सब अपने अपने फील्ड में महारथी हैं. हम आपको देख के बड़े हुए हैं. तो आओ ना. सोनू जी थे, श्रेया घोषाल थे और संजय लीला बंसाली थे. और टीम भी थी. बाकी पूरा सोनी की टीम थी, सब कुछ था. तो और मैं बच्चा मतलब मैं आज की नजर से देखता हूँ तो मुझे ये भी रियलाइज होता है कि मैं ना सीखता बहुत स्लो हूँ. आई एम स्लो लर्नर. 27 साल की उम्र में. व्हाट्स योर एज? 25. यू नो यू आर डूइंग मोर देन मी. आई डिडंट नो. तब सोशल मीडिया, इंटरनेट भी नहीं था. तो करेक्ट. ये जो जागरूकता है ना, ये आसानी से अब अवेलेबल भी है ना. हमारे टाइम तो पापा मम्मी जो कह दें, कोई डांट दे तो चुप हो जाओ, कोई कुछ बोल दे तो दैट इट वाज. और हमारा टाइम में इसलिए कह रहा हूँ, मेरा टाइम कम से कम वैसा था. मैं स्लो लर्नर भी था, मैं टिमिड, मैं थोड़ा डरता भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं था. तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि किसी ने किनारे बुला के नहीं पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम तो अच्छा कर रहे थे यार, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है. वो जो माहौल बन जाता है ना, मौकरी. क्योंकि मैंने ये भी देखा लाइफ में, ज्यादा आईबॉल्स ना नेगेटिव इमोशन को मिलती है. 100%. ज्यादा आईबॉल जो मिलती है वो इस बात से मिलती है कि आप रो दो, आप कोई ऐसी बात कह दो जिससे कि यू नो मल्टीपल पीपल अरे. नहीं तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि कोई काश किनारे बुला के सिर्फ इतना पूछ लेता, बेटा क्या हो गया. But that's true for life also, no? A lot of people can't share and are feeling extremely lonely just because that one basic question is not there. Yeah. And I totally understand why, because everyone has been raised a certain way, तो वो बहुत casually नहीं आता है. Right. I mean, and that's why like America saying that it's a most, like I forgot the statistics, but they did a survey, 70 or some percent of the entire country feels that they are lonely. And that's just taking over right now. यार मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत बॉक्स्ड हैं चीजें. ऐसा है तो कहाँ अकेला होगा यार. एक्सट्रोवर्ट है कहाँ अकेले होते हैं यार. यू नो एक्स फैक्टर जीत लिया अब तो क्या ही प्रॉब्लम हुई. यू वोंट बिलीव कितने सारे लोगों का सवाल ही होता है अब क्या कर रहे हो. अरे तो हर बार टीवी पे थोड़ी आना मुझे. इट वाज अ कंपटीशन. आई वन इट एंड देन आई कंटिन्यूड विद माय लाइफ व्हाटएवर द ट्रैजेक्टरी वाज. है ना. सो ये जो प्रेशर है ना अनड्यू. करेक्ट. अब कुछ नहीं. अब बताओ कहाँ है वो. कहाँ होना चाहिए था. हूँ यही मुंबई में हूँ काम कर रहा हूँ और जैसा भी होता है वैसा कर रहा हूँ. ये ना वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना सचिन को भी बैटिंग सिखाने लगते. सारे क्रिकेट देखते या हीरो कोई फ्लॉप हो गया 2 फिल्मों के बाद. अब कहाँ है. अरे हाँ लेकिन भाई कितनी हिम्मत थी ना उसके अंदर कि तुम्हारे जैसे सिक्योर लाइफ छोड़ दी उसने. नहीं करूंगा नौकरी. झक मारूंगा जिंदगी भर. और इवेंचुअली एक फिल्म उसने की एज अ हीरो. 2 की नहीं चला. Whatever, for whatever reasons. Dude, the balls. Yeah. But that pleasure comes from that, na, ki, see, because it didn't work. Negative see, emotion. that's why I knew it won't work. That's why I didn't take that decision. There's pleasure in seeing कि अरे हाँ मैं इतना फकौल तो नहीं हूँ. जबकि वो फकौल है ही नहीं. बिग बॉस और ये सारी चीजें हाइप पे क्यों चलती है. Exactly. वो वॉयरिज्म तो है ही उसमें. बट उसके अलावा ये भी है ना कि अरे हाँ ये लोग ऐसे, ये तो सेलिब्रिटी है, ये ऐसे है. आप मुझे एक चीज बता दो ना कि बिग बॉस में क्या है जो इतने साल से चलता चला. इट्स नेगेटिव इमोशन हाउ इट सेल्स. जैसा कि मैं कह रहा था नेगेटिव इमोशन सेल्स. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इमोशन की जगह नहीं. बहुत जगह. हाँ. और इट्स वेरी इजी टू लेबल दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ. देखा अभी जीत गया तो ये बातें कर रहा है. हाँ. देखा नेगेटिव बातें कर रहा है. हाँ. नहीं, अगर आप हर सच्ची बात को नेगेटिव और ट्रू के बैग में डालना चाहते हो दैट्स योर चॉइस. राइट. क्योंकि हर बात कुछ तो होगी. है ना. और क्योंकि मैं वो जी के आया हूँ. और ऐसा नहीं कि they were not kind people. Oh, they were kind people also. They were very kind to me. I still am friends with them. They have understood me on a human level. Generally क्या होता है इतना disconnected feel. और आप जाके जब YouTube पे मेरे X Factor के performances के comments देखेंगे, you will see कि people were hating me left, right, center. Oh yeah, left, right, center. And मैं खुद, I'll tell you an incident. I won't take names. मैं खुद I went to someone कि सर देखो जिस तरह से चल रहा है मैं जीत जाऊंगा. अच्छा. हाँ, क्योंकि मैं बॉटम में आ नहीं रहा हूँ इतना खराब गाने के बाद भी. हाँ, as a city that's supported. हाँ, अगर मैं खराब गा रहा हूँ जैसे सबका कमेंट है कि मैं खराब गा रहा हूँ और मैं गा भी रहा था. I was not at my best. That's what I will say. तो मैं गया भी था कि सर ऐसे तो मैं जीत जाऊंगा. तो ये वो एंड पर हुआ कि नहीं वो ऑनेस्टी कभी पर्दे पे नहीं आई. हाँ. कि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई कि नहीं जीतना भाई. मैं चला जाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एट माई बेस्ट. मैं ये करने आया ही नहीं था. मैं जीतने तो आया ही नहीं था ना. मेरे मकसद था कि मैं गाऊं और दुनिया सुने. आई रियली ग्रू अप विद दैट ड्रीम. मैं ये सपना लेके थोड़ी बड़ा हुआ था कि इंडियन आइडल के किसी एपिसोड में मैं विनर कहलाऊं और एक्स फैक्टर में विनर कहलाऊं. ये बाई प्रोडक्ट्स हैं इस बात के चुनने के कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं. Where's that musician high? हाँ, मतलब आप गाओ और दुनिया सुने. वाह, what a high. Tell me about the Coldplay concert you went to. What was that? That high went really low because you stood in a line for 8 hours. I know. So what happened was I went with my friends. तो 12 बजे आके हम बैठ गए वेन्यू पे. 8:30 बजे शाम को शो है. 8.5 hours. ठीक है. For a better spot. Did we get a better spot? Yes. Was it a good experience? No, not at my age. I don't fancy it. मुझे लगता है कि इस तरफ काम हो सकता है कि इतना हैरेसमेंट क्यों चाहिए. 8.5 घंटे वेट करने के बाद मेरे जैसे आदमी की एनर्जी शो एंजॉय करने की तो नहीं बचती भाई. fair. 20 साल 21 साल 22 साल के बच्चों को बचती होगी. मैं थोड़ा बुढ़ापे की बातें. I think they also haven't seen life ना. So everything is a good experience. मेरे साथ है 1 मिनट. If I am going to Taj and you don't have a valet, sorry, I won't come. You say you are Taj, right? Then where is your valet? It's like that. आप Coldplay हो और of course the concert was brilliant. Of course वो बहुत सारे ecological steps ऐसे उठाते हैं. Ecological? धरती के नहीं, धरती के लिए ecological steps ऐसे उठाते हैं जहाँ पे very thoughtful, mindful. पर अगर अभी भी लोग 8.5 घंटे वेट कर रहे हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए 2024 में, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद इट.
किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। Hmm. और प्लस मैं इतना बड़ा फैन किसी का नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ। एक आदमी का था, अब उसका भी नहीं। What was that? If you want. छोड़ो ना। Okay. एक आदमी का था, पर दे से ना डोंट मीट योर हीरोज। Oh, ओह फकिंग हेल यस, नेवर मीट योर हीरोज। ruined it. या बिकॉज, पर ये उनकी गलती नहीं है, ना उन पे ओनस है। हाँ, that was your image, the image you built, Exactly, ना? उसकी गलती थोड़ी है कि वो आपके एक्सपेक्टेशन Correct, लेके, correct, correct. आपके एक्सपेक्टेशन, अरे मैं तेरा हीरो, अरे लेट मी डू समथिंग। हाँ, नहीं, correct. आई थिंक दे आर ह्यूमंस एंड वी Yeah. फॉरगेट दैट। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए भूल जाते हैं, Yeah. पेरेंट्स आर ह्यूमंस, Hmm. तो हम बहुत सारी चीजें ना भूल जाते हैं। We just had this conversation in a previous episode with my sister that भगवान का रूप है, वो वाला conversation. It's a बाबा भगवान का रूप है. हाँ। Then it eliminates the idea of कि उनको इंसान की तरह देख ही नहीं पाते. That's what we have done to the ladies. Yeah. औरतें देवी हैं, क्योंकि आप देवी हो, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, हाँ, आप ये नहीं पहन सकते, हाँ, आप ये नहीं कर, क्यों भाई? हाँ. मैंने एंड इफ आई कैन बी ओपन ऑन दिस, Yeah, yeah. घरों में मैंने मर्दों को लुंगी पहन के घूमते देखा है, तौलिया पहन के घूमते देखा है, और इतनी ही गर्मी में मम्मियां लोग किचन में खाना बना रही हैं, पसीना टपक रहा है, पंखा नहीं चला सकते, कुछ नहीं, लेकिन फुल मैक्सी पहने। क्यों हमारी मॉम्स शॉर्ट्स नहीं पहन सकती? Hmm. हम तो गर्म कंट्री से आते हैं। Hmm. अच्छा, प्रॉब्लम ये कि आप अपनी मॉम से भी पूछोगे तो वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, हाँ, वो इतना डीप रूटेड है, इतना डीप रूटेड है वो. इतना डीप रूटेड है कि आप अपनी मॉम से भी पूछोगे तो वो कहेंगे अरे अरे नहीं, पागल हो गया. हाँ. पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? I remember my मतलब mom बहुत logical wearing बात कर रहे हो। jeans was an event. She was so happy कि अरे आज मैंने at one time, and then she was like I'm also not comfortable in it, हाँ. so I don't want to wear it. That's a different thing. That's her choice. हाँ, But this idea of I don't know if I'll be able to have this conversation with her. कि mummy you should start wearing shorts and chill. my mom will never, she Same. doesn't, Same, yeah. and no one is judging you. अच्छा, अब तो आप 60-65 हो गए, अब तो कोई वैसे देख भी नहीं रहा, तो क्या है, इस उम्र में थोड़ी, अब जब उम्र थी तब नहीं वो पहन, प्रेशर बना रखा कि अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अब ये प्रेशर है कि अब लोग क्या बोलेंगे 60-65 तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, never ending. जैसे किसी ने बहुत वियर्ड कन्वर्सेशंस हुए लाइफ, किसी ने कहा कुछ, किसी लड़के ने कुछ पूछा तो बोला ऐसा आपकी बहन के साथ कोई करेगा तो आपका खून नहीं खोलेगा। मैंने कहा मेरा ठेका ही नहीं है खून खोलने का, मेरी बहन को अगर बुरा लगेगा और मुझसे हेल्प चाहिए होगा तो वो बोल देगी मुझे, Fair. नहीं तो वो खुद हैंडल कर लेगी। Correct. वो खुद बोलेगी Correct. कि समवन अप्रोच्ड मी एंड आई सेड नो थैंक यू, हाँ. और आई सेड लेट्स मीट व्हाटएवर हर टेक इज ऑन, हाँ. हु एम आई टू बुली हर, ठीक है, एंड देन इफ शी नीड्स, पर तुम बड़े भाई हो, छोटे भाई, तुम्हारा खून कैसे नहीं खोलना? नहीं है भाई. भाई खोलने वाला नहीं है खून मेरा। हाँ, Sorry. fair. हाँ, it's always like even my sister, I have a elder sister. हाँ, So she's always like, and I've seen other brothers and how they are. अरे तू किससे बात कर रही है? हाँ. अरे नहीं, this is my love for you. I'm like balls, bro. हाँ. What kind of love is this? If she's not comfortable, she'll tell you, no. Tell her that freedom that she can come to you and talk about anything. But you have not created that space with her that she Exactly. can come and tell तुम बड़े you. भैया हो। हाँ, exactly. तो वो है. But I want to go back and talk about what do you think about loneliness? यार जरूरी चीज भी है एकांत, मुझे अकेला रहना नहीं आता। Solitude. हाँ, And वहीं आ loneliness. रहा था, वहीं आ रहा था, हाँ. मैं वहीं आ रहा था। तो सॉलिट्यूड अच्छी चीज है, पर यार जैसे कि मैं अभी 24 फरवरी को 40 साल का हो गया, और दिन का करीब 7-8 घंटा मैंने अकेले बिताया, कोई था नहीं कंपनी। और बर्थडे के दिन ये और रहता है कि किसी को फोन करके आप बोलो मेरा बर्थडे है, मेरे साथ रहना यार, या कम टू मीट मी, आप, मैं ऐसे आई विल कॉल विदार, समझना। पर बर्थडे के दिन ना एक थोड़ा सा वो हो जाता, शुड आई टेल पीपल इट्स माय बर्थडे? No, you didn't. You met me that day and you didn't tell me. Yeah, that's why, because that's there. It's also an awkward conversation. Yeah, on any other day I will say, yeah, बैठना, let me, आज मेरे साथ कॉफी पी ले, I would say that, but on a fucking birthday, it's like they will get to know, it will get awkward. Yeah. जैसे एक दोस्त मेरा मिला, मैं थर्ड वे में बैठ के कॉफी पी रहा था, तो बैठे वो आया और बैठा, 15 मिनट बात हुई, एंड फिर बोलता है कि, तो मैंने बोला इट्स माय बर्थडे, विश मी, come on, you मैसेजेस दिखाए, बोले व्हाट रियली, लेट्स गो फॉर अ लंच। So he took the initiative. He took me to a cafe. We had lunch. He gifted me 2 books from there. Whatever. Then I was again alone for a long time. मेरे को अकेला रहना नहीं आता है भाई। मैं ना, जैसे ये घर है बड़ा, चारों तरफ खुला सब कुछ है, पर I can't see people ना। I get
वेरी वियर्ड, Yeah. दैट्स व्हाई आई वर्क फ्रॉम अ कैफे। Hmm. मुझे अपना कॉर्नर चाहिए Hmm. पर लोग चाहिए, चहल पहल हाँ. चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट हूं मैं। There was a big patch of life which I lived alone. Hmm. I so vividly remember it. I had the same thing. I couldn't stay just by myself. Hmm. I couldn't. Now you can? Now I love it. How did you love it? How did you learn it? I want There to learn that. things happened Huh. and I was left with no other option But to live alone. to live alone, to stay with myself. And I always I was aware about this thing, that why am I not able to just be with myself? Right. Now I need it every day. बहुत वक्त तक बहुत लोग हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा, जैसे मेरे बर्थडे के लिए सोशल बैटरी है एक जो खत्म सोशल हो जाती बैटरी है। नहीं, मुझे पसंद है, लाइक if I was given an option कि do you want to stay alone or chill with like a bunch of people? Of course it depends on the Yeah, mood, yeah. but I will even Prefer. consider, Yeah. prefer, maybe not, I don't know, but I will now consider it. Like what happened, for my birthday we went to Mathiran, all my friends, और मेरी birthday ना ऐसे वो ईद बासी ईद होता है ना, वैसे 3 दिन चला मेरा When's your birthday, birthday? 17th August, Okay. right? So what happened is गुलजार साहब के बर्थडे के एक दिन पहले है बर्थडे। रॉबर्ट डेनिरो के बर्थडे के दिन मेरा बर्थडे। सो वी वर एट द टॉप माथेरान में, तो वहाँ पे तो कोई ट्रैवल करने के लिए सिर्फ घोड़े हैं और यू कैन वॉक। सो धर्म एंड एवरीवन एल्स हु वाज विथ मी, दे डिसाइडेड कि हम घोड़े पे आएंगे, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। आई वाज लाइक, नहीं, आई जस्ट वांट टू वॉक। माय फोन वाज विद योशिता बिकॉज बारिश हो रही थी, माय वॉलेट वाज विद समवन एल्स, सो आई हैड नथिंग, एम्प्टी पॉकेट्स, तो मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने 2.5 घंटा वो वॉक किया नीचे तक अकेले, और शांत जगह है, और मैं अलग इंसान बन के नीचे आया। द पेन आई वाज गोइंग थ्रू started feeling so absurd. I was like, I think a conversation, sorry, continue. Talking, yeah, of course, that A helps. conversation can be around pain also. Yeah. Loneliness, yes, but then actually क्या होता है, सब surface हो जाता है ऐसे. The noise settles. लोग, दोस्त, party, film, conversations, everything settles down, and the noise surfaces. The pain surfaces, and यार बहुत लोग बहुत तरह के पेन से गुजरे होंगे, पर जितना मैंने पढ़ के समझ के रियलाइज किया कि किसी का पेन छोटा नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो 100% है ना, ऑप्टिमम पे है। Yes, yes. है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि there was a phase in my life when I was very lonely. मेरे दुश्मन को भी ना फेस करना पड़े, उस तरह का फेज था वो। मैं अभी भी सोचता हूँ उस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, Okay. क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कन्वर्सेशन में, एंड एवरीवन डिजर्व्स अ क्लोजर, एवरीवन डिजर्व्स अ क्लोजर। नथिंग इज मोर टॉक्सिक देन नॉट गिविंग अ क्लोजर। आई हैव सीन इट एज अ जस्ट अ सेकंड, इधर ही बने रहिए कहीं। Not giving a closure is the most toxic thing. Yeah. We are humans. And मुझे ऐसा लगता है not communicating or giving cold shoulders. You are not a magician, ना? How will you understand? क्या हो रहा है? हाँ. And किसी भी न्यू रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को, नया पुराना, कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रिज है जो बचाए रखता है, राइट? तो मुझे लगता है 100% वो भी गया नहीं है मेरे अंदर से, अभी भी कहीं ना कहीं उसका हर्ट है। मैं बहुत दफ़े चाहता हूँ, और इट्स बीन 6-7 years में रोया नहीं, बिकॉज उसी दौरान एक बार रोते रोते मुझे बिलिटल कर दिया गया था ना, मर्दों के साथ, या आप रो रहे हो और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब तो वो सब हुआ। ओ या Been there. पर व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि सब अच्छा थोड़ी हो रहा है। हाँ, ये जो सारे इंटरव्यूज जिसमें सिर्फ आप दुनिया ये बता रही है कि अच्छा हो रहा है, हाँ, सारा इंस्टाग्राम जो आपको बता रहा है अच्छा हो रहा है, हाँ, सारा फेसबुक आपको ये बता रहा है देखो कितनी अच्छी है मेरी दुनिया, घंटा। क्या सच बोल देना नेगेटिव होना हो जाता है? हाउ नेगेटिव आप डिग्री से तय करते हो ना। मैं अगर हर बार मिलूं और हर बार ये बात करूं, हाँ, तब तुमको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो क्या सच नहीं बोला जाए, है ना? Correct. अगर मैं हर बार मिलूं और हर बार मैं लिंप कर रहा हूं, या हर बार कोई दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ना यार कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना
प्रेशर है पॉजिटिव होने का दुनिया पे, इतना प्रेशर है ना दुनिया का पॉजिटिव होने का कि वो जो पेन है वो लाइटली ले ही नहीं पाते लोग। भाई ये जो साइड है आपके लाइफ की जहां पे चीजें सही नहीं चल रही या नहीं चल रही थी, होता है ना, टॉक अबाउट इट ना, क्या प्रॉब्लम है? इससे तुमको ये भी समझ में आएगा कि शायद सुनने वालों को शायद या देखने वालों को ये लगेगा कि ओ हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ मेरे साथ होता है ऐसा नहीं है। That genuinely helps a lot. हाँ जो समझ आता है ना कि जैसे कि कोई गिर जाए 60 साल का आदमी चलते चलते, तो बच्चे को क्या समझता है, अंकल लोग भी गिरते हैं, फिर ठीक है यार। नहीं तो मुझे आज तक उस दिन हम कन्वर्सेशन कर रहे थे ना कि लोग गिरने पे हंसते क्यों है लोग। ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप प्लीज कि आपको क्या लगता है कि लोग किसी के गिरने पे हंसी क्यों आती है? किसी के उड़ने पे तो नहीं हंस रहे आप, किसी ने पैराग्लाइडिंग कर लिया पहाड़ से कूद के, उस पे तो नहीं हंस रहे आप, किसी ने ड्राइविंग सीख ली और बढ़िया ड्राइव कर रहा है, सिग्नल फॉलो, उस पे तो नहीं हंस रहे आप, पर जैसे कोई गिरता है हंसने लगते हो। गलती पे गलती पे आपको सडनली या तो ये लगने लगता देखा मैं नहीं गिरता हूँ, वही है नार्सिसिज्म ऑफ आई नो बेटर। तो वो बहुत सारी चीजों में है। अच्छा, और अनजाने में हमसे भी छलकता होगा ये, ऐसा नहीं है। हम ये बात कह देना का मतलब ये नहीं कि हमें पता है, इसका मतलब हमने ढूंढ लिया है। हम सही होंगे उसमें भी वक्त लगेगा। 100%. That's the whole point of it. That these are the conversations we are putting out. This is what we believe in this time and space. Absolutely. It's meant to be changed and evolved, or else we're just static stones. If that doesn't happen. मैं एक और फिलॉसफी है, मैं अगर 18 घंटे दिन में दौड़ूं तो यहाँ बैठे सब लोग मुझे बोलेंगे पागल है, पागल है। 18 घंटे कॉफी पीऊं तो पागल, 18 घंटे खाना खाऊं तो, 20 घंटे सोऊं तो, वो तो हेल्दी है पर पागल है। पर आप 20 घंटे काम करो और मुझे एक आदमी बता दो जो आपको बोले कि पागल है। सोसाइटी ने क्या बनाया, क्योंकि काम कन्वर्ट्स इनटू मनी इवेंचुअली, एंड मनी इज एक्सेप्टेबल। सो बहुत मेहनती है यार, 4 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है, लेकिन 20 घंटे काम करता है यार। वाओ, रियली? हाउ इज दैट ताली बजाने लायक? इट्स नॉट। ही इज आल्सो रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग एल्स। वर्कोहॉलिक्स आर आल्सो रनिंग अवे in a much accepted way, bus. Nice. They're also running away from things. Correct. But yes, there are so many things we should talk about. We will talk about. Yeah. But इस एपिसोड को कंक्लूड करते हुए क्या लगता है, कैसा लगा? यार, this is like just our conversations now in front of a camera, right? Yeah. And whole idea is to just share what you think, and you are free to label it as you want. मैं तो यही बोलूँ, प्लीज लेबल इट एज यू वांट और डोंट लेबल इट, आई वुड से जो आपको लगता है काम का है ले लो, जो लगता है बकवास है बोले अरे चुतिया कुछ भी बोल रहा है, ओके कूल। पर दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ, ये है, और ये चीजें इवॉल्व भी होंगी और बेटर भी होंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यही था ना जो पहले ऐसा बोला था, हाँ पर बदला, सीखा उसने, इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया। करेक्ट, सिंपल। सो हो सकता है आज से 5 साल बाद हम सेम कुछ और बातें कर रहे हो इन्हीं टॉपिक्स पे, और इनको नकार रहे हो, क्योंकि that's what evolution is all about. Yes. हाँ जी. So now you told me कि आपको बहुत आपके शहर से वोट्स आए थे X Factor में, तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला पार्ट you should do because I think you're good at it. It's been years though. So 4 विचार जो हमारा ये पॉडकास्ट है, इसको सुने, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं विदार को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, और साथ ही पीछे सारे लोग जो बैठे हैं, धर्म है, यश है, हर्ष है और योशिता है। I want to thank all of them for thinking that I could be a part and help. Yes, I could be a part of this, and I'm really, really happy. To many more. Absolutely. Thank you so much. Chalo. पंखा ऑन कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा ब्रेक ले लो, खा लो, कुछ खा लो।